میرے بہن بھائیوں، میرے ہموطنوں، مسیحیت میں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ اس سے قبل ہم مختلف مضامین پر بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئے ہوں گے، یا ان میں سے کئی سوالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہوں گے، کچھ منفی یا مثبت اثرات بھی اس کے آپ پر مرتب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ ان سے کوئی معلومات ہم سے چاہتے ہیں یا اپنے منفی خیالات کو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ کو نہیں مل رہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیے جائیں جو ہمارے مضامین سے منسلک ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایک اور مضمون ہے، پتھر۔ ہم بائبل مقدس کے حوالے سے پتھروں کا بیان کریں گے۔ پتھر ویسے ایک معمولی چیز ہے، ہم اکثر آتے جاتے پتھر دیکھتے ہیں، پتھروں کو راہ سے ہٹاتے ہیں۔ پتھر کے بہت سارے محاورے بھی ہیں۔ پتھر کو راہ سے ہٹانا یعنی کسی مشکل کو دور کرنا، کسی رکاوٹ کو دور کرنا۔ پتھر مارنا یعنی کوئی سخت بات کہہ دینا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے بات نہیں کی، پتھر مار دیا۔ اس طرح کے بہت سارے محاورات بھی، جیسے بائبل مقدس میں ایک محاورہ استعمال ہوا، کونے کے سرے کا پتھر مسیح یسوع کے حوالے سے، تو یہ بھی محاورتاً کہا گیا ہے کہ یعنی کسی ایسے مقام پر جگہ بنا لینا جہاں پر کوئی دوسرا شخص وہ جگہ نہ لے پا رہا ہو، تو ہم اسے کونے کے سرے کا پتھر کہتے ہیں، یعنی جس پر پوری عمارت کا دار و مدار آ جائے وہ کونے کے سرے کا پتھر کہلاتا ہے۔ خیر، ہم آگے بات کر رہے ہیں تو، لیکن پتھر ویسے ایک معمولی چیز ہے، ہم اسے عام راہ چلتے آتے جاتے دیکھتے ہیں، بڑے پتھر پڑے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب پتھر کسی خاص مقصد، کسی خاص مقام یا کسی خاص طریقہ کار کے تحت اپنائے جاتے ہیں یا کسی سے منسوب کر لیے جاتے ہیں تو پتھروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو علم نجوم میں بھی ہمارے پاس بہت سارے پتھروں کا بیان آ جاتا ہے، اور قیمتی پتھر بھی ہیں، غیر ضروری پتھر بھی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ قیمتی پتھروں میں ہمارے پاس بہت سارے ہیں، بائبل کا بہت سارا ذکر آتا ہے۔ جب ہم حزقیل 28 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لوسیفر کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے، سور کے بادشاہ کو جو تنبیہ کی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تو کون تھا، تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ابلیس سے متعلق ہے، تو کتنے قیمتی پتھروں کے درمیان رہا کرتا تھا، تو وہاں پر بہت سارے پتھروں کا بیان ہے۔ ہارون کے سینہ بند کے پتھروں کا بیان ہے۔ نئے یروشلم کے بارے میں پتھروں کے بنا کے چل کر ہم بات کریں گے، لیکن بائبل مقدس میں مختلف پتھروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے مطلب جو ہے وہ پتھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جب ابن عزر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کا پتھر، تو یہ اسمبلی کی کتاب میں اس طرح آیا ہے۔ یونانی میں اسے پتھروس کہتے ہیں، انگلش میں سٹون ہے، اور اردو میں ہمارے پاس یہ پتھر کے معنوں میں، اور فارسی سے ہمارے پاس سنگ کے معنوں میں بھی یہ آیا ہے، اور اگر عربی میں چلے جائیں تو یہ حجر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پتھر بطور ہتھیار بھی استعمال ہوا ہے سیموئیل کی کتاب میں۔ سیموئیل 17 اگر باب میں دیکھیں تو اس کی 49 آیت میں اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ گنتی 35:17 میں، یوحنا 8:59 میں، اور اعمال 7:8 میں جب استفان کو شہید کیا گیا۔ یا اس وقت پتھروں کا ذکر آتا ہے جب مسیح یسوع اس خاتون کو سنسار کرنے کے لیے لاتے ہیں، تو مسیح یسوع اس بھیڑ میں جا کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب تو کون ہے، تو کون ہے، اور پھر وہ آخر اپنے پتھر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ پتھر کلام مقدس میں، یہ پرانے زمانے میں یہ تاریخ سے بھی ثابت ہے، بائبل بھی سے بیان کرتے کہ پتھر بطور پیمانہ بھی استعمال ہوتے تھے۔ مثلا بار 1936 میں جو پتھر کا استعمال کیا گیا، اردو میں اس کے لیے باٹ کا آیا ہے جو ترازو میں رکھا جاتا ہے تو تولنے کے کام آتا ہے، اس کو باٹ کہا جاتا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ پتھر بطور اوزار بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، خروج 4:25 میں۔ اس کے علاوہ بطور اوزار بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، کبھی اس کی چھانی بنا لینا، یا کبھی جانوروں کو مارنے کے لیے جو ابتدائی انسان تھا وہ پتھروں سے اوزار بناتا تھا، ہتھیار بناتا تھا اور شکار کرتا تھا۔ بڑے پتھر بھی استعمال، بڑے پتھر یہ قبر کے منہ پر رکھے جاتے تھے، جیسے یشوع 10:18 میں ہے، یہ متی 27:60 میں ہے۔ ان سے کنویں ڈھانپنے کا بھی کام لیا جاتا تھا، پیدائش 29:2 میں اس کا ذکر ہے۔ تو بعض اوقات جو کنویں استعمال میں کم آتے تھے
या उनको खत्म करना मकसूद होता था तो उसे कुओं को भर दिया जाता या ढांप दिया जाता था। तो लेकिन जो कुएं इस्तेमाल होते हैं, बात औकात यह है कि कुआं ढांप के पत्थर ऊपर रख दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसको पीछे खिसका कर पानी भर के पत्थर को फिर बराबर कर दिया जाता था ताकि उसमें गंदगी या आलाइश शामिल ना हो। पत्थर बतौर निशान या हद भी इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे दूसरा शमूएल 20:8 में या इस्तिस्ना 19:14 में, यशवा 15:6 में के पत्थरों को बतौर निशान या हद भी इस्तेमाल किया जाता था। आप इसका मुताला फरमा सकते हैं। पत्थर बतौर यादगार भी इस्तेमाल किए जाते थे। यशवा 4:20, पैदाइश 21:47 में मुखरम जिक्र हवाला में मुराद शहादत का ढेर है। शहादत का ढेर यानी गवाही का ढेर है, जो पैदाइश 31:47 में बयान किया गया है। वहां पर गवाही के तौर पर जो पत्थर रखे गए थे तो वहां पत्थर गवाह के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। और पत्थर बाजू का खानदानी पत्थर भी ऐसे होते थे जिनको संभाल कर रखा जाता था। इसके अलावा पत्थर बतौर कुर्बान गाह या मज़बा के भी इस्तेमाल होते थे। इसमें हमारे पास बहुत सारे कह के फलां ने कुर्बान गाह बनाई, पत्थरों की कुर्बान बनी। इवन नूह ने तूफान के बाद जो कुर्बान गाह बनाई उसने भी पत्थर लिए और कुर्बान गाह बनाई। इसके बाद भी जिक्र मिलता है। इन पैदाइश 28-18 में इस्तिस्ना, जब इस्तिस्ना की बात करते हैं तो 27:5 में हमें ऐसे कुर्बान गाह और मज़बा का जिक्र मिलता है जिस पर जो है वो कुर्बान गाहें बनाई जाती थी। तो अगर हम इब्राहिम के हवाले से देखें तो इसहाक को जब कुर्बान करने के लिए ले गए तो वो कोई मोरिया पर पत्थर के ऊपर ही इसहाक को लटाया गया जहां पर उसमें कुर्बान करना मकसूद था, लेकिन बहरहाल वो कुर्बानी खुदावंद की मर्जी से टल गई और उसकी जगह पर मुहैया कर दिया गया। कीमती पत्थरों के तौर पर भी इस्तेमाल, अब कीमती पत्थरों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पत्थर, हीरे जवाहरात वगैरह आ जाते हैं, तो आप इनके नाम जो है बकायदा पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। सलातीन, पहले सलातीन 7:8-12 ये तराशे हुए पत्थरों के बयान में आया है। जब सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए महल बनवाया तो इसको कीमती पत्थर कहा गया। लेकिन कीमती पत्थरों में मैंने पहले भी बताया कि वो आ जाते हैं जो हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको भी कीमती पत्थर कहा जाता है, जिसका बयान अभी आगे आएगा। पत्थर बतौर तशबीह इस तरह भी इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे खुरूज 15:50 में कि मिस्री पानी की तह डूब गए, जैसे पत्थर डूबता है, यानी इस तरह में पत्थर की तरह तह में डूब गए। यानी वो बतौर तशबीह इस्तेमाल हुआ है कि अगर पत्थर को पानी में, छोटा से छोटा पत्थर भी पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। तो इस तरह मिस्रियों को तशबीहन वहां पर पत्थर कहा गया, जैसे पत्थर डूब जाता है पानी में, इस तरह से वो डूब गए। पत्थर बतौर अलामत भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी खुदा का खौफ या पत्थर की मानिंद बेस और हरकत हो जाना, तो अलामत को अगर भी इस्तेमाल करते हैं। खुरूज 15:16 में आप इसको देख सकते हैं। नबाल पत्थर की मानिंद सुन हो गया, ये इस्तेमाल किया गया, यानी बिल्कुल जमद हो जाना, एक जगह पर जम जाना, हिलना नहीं। तो उसमें खौफ, उसमें जिसे हम आजकल सत्ता की कैफियत भी कह सकते हैं, सत्ता की कैफियत तारी हो जाना, मुजमिद हो जाना, जुनूद अख्तियार कर जाना, ये चीजें हमें बताती हैं कि पत्थर की मानिंद हो जाना। तो यह हम इस तरह बाज़ औक़ात किसी को कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी के दुख या दर्द को नहीं समझता तो हम कहते हैं वो शख्स पत्थर हो गया है, या हम उसे पत्थर दिल कहते हैं। ये सारी तशबीहात या अलामात है जो हम बयान करते हैं। जैसे एक शमूएल 25:28 में 27 में बयान किया गया है। और मसीह के बादशाह को भी भारी पत्थर की मानिंद कहा गया जो हुकूमतों को चूर चूर कर देती है। इसका हवाला हम दानियल 2:32 और मत्ती 21:22 में देख सकते हैं। मत्ती 21:22 में कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है, जबकि वहां पर दानियल में उसके मायने और तशरीहात जरा मुख्तलिफ हो जाती हैं। प्लूस मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहता है, जाहिर है मसीह सुलूखुद्दी का इफ्सियों 2:25 और 27 में आप पढ़ सकते हैं। और बाज़ औक़ात पत्थरों को, इंसान को जिंदा पत्थरों की माने तशबीह दी गई है कि वो जिंदा पत्थर है, यानी जब अहले ईमान होते हैं वो जिंदा पत्थरों की मानद होते हैं। यानी पहला पत्थर 2:5 और 8 में पढ़ सकते हैं। पत्थर बतौर बुत या मुजस्समा या तरशी हुई मूरत ना बनाना,
इसका मतलब यानी वहां पर हर चीज का बयान है, उसमें पत्थर भी है, लकड़ी भी है, सोना भी है, चांदी भी है, या कोई और धात है, या कोई और चीज है, कोई या मिट्टी गारा भी। तो उसमें हम तशबीहात जो इस्तेमाल करते हैं वो उससे ना बनाना, या उसको ये कोई मादा ऐसा ना लेना, उसमें पत्थर का भी कोई तरशी हुई मूर्त ना बनाना। तरशी हुई मूर्त हमारा तरशी हुई सूरत पत्थर से ही बनती है, ये लकड़ी से बनती है। हाँ लकड़ी को या हाँ पत्थर की। आप खरूज 20:7 में देख सकते हैं, एबार 26:1 में देख सकते हैं, इस्तिस्ना 4 बाब 16 आयत में देख सकते हैं, इस्तिस्ना 5:8 में देख सकते हैं, हबकूक 2:18 में देख सकते हैं। और संसार करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं पहले उस मिसाल में मसीह यीशु के हवाले से बयान कर आया हूं, या स्तिफनस के बयान में हम पढ़ आए हैं। इससे पहले भी पुराने इस्लाम में संसार करने का जिक्र है। तो संग का मतलब ही यह है पत्थर, और सार का मतलब होता है कि मारना, यानी पत्थरों से मारना संसार कर देने को कहते हैं। तो उसमें संघ का हवाला इसीलिए आया है। और चंद एक हवाला जात मैं आपको बता देता हूँ। खरूज 19:3, एबार 20:23, 24:14, गिनती 15:35, इस्तिस्ना 13:10, 17:5, 21, यूहन्ना 10:32 और 8 बाब 5, जहां पर औरत जो ज़िना के हालत में पकड़ी गई उसके लिए ये सारे इस्तेमाल हुए। इसके अलावा अमाल 7 बाब 59 आयत, 14-19, क्रंथियों पहला क्रंथियों 13-11-25 और इब्रानियों 11-37। कीमती या ग्रह कदर पत्थर, हारून का सीना बंद जैसे खरूज 28-17 और 39-9 में है। पहली किताब याकूत, सुर्ख, लाल, पुखराज, गोरे शबे चराग, जमुर्द, ये सारी चीजें। दूसरी किताब जमुर्द, गोरे शबे चराग, दूसरी किस्म का नीलगू जमुर्द पत्थर होता था, और नीलम हीरा या उसे बशम भी कहा, यशम भी कहा जाता था। तीसरी किताब जो है वो लशम की है, और ये हीरे की एक और किस्म है जिसे फिरोजा कहा जाता है, और यशम ये हीरे ही की किस्म है जिसे अकीक भी कहा जाता है। याकूत ये पहली किताब के याकूत से मुख्तलिफ है, यानी अरवानी रंग का। चौथी किताब है फिरोजा या लशम से मुख्तलिफ है, यानी जबरजद। संग सुलेमानी इसे जुजा भी कहा जाता है, चूंकि यह हजरत सुलेमान के पसंदीदा पत्थर था इसलिए इसे संग सुलेमानी के नाम से मंसूब कर दिया गया। याद रखें कि जुजा जो पत्थर था वो हजरत सुलेमान का पसंदीदा पत्थर था, इसलिए उसे संग सुलेमानी से मंसूब कर दिया गया। जबरदस्त ये फिरोजा की एक किस्म है और पहले वाले जबरदस्त से मुख्तलिफ होता है। अयूब की किताब में 28 बाब 16-19 में जिन पत्थरों का जिक्र उनमें संग सुलेमानी यानी जुजा और नीलम, ये कांच यानी शीशा, मोंगा, ब्लोर, जान और पुखराज शामिल है। लूसीफर की ज़बाइश में भी जिन पत्थरों का 9 पत्थरों का जिक्र किया गया है उनमें ये तमाम पत्थर आते, मरजान, हकीक वगैरह। आसमानी यरूशलेम मुकाशफा 21:9 में जो दर्ज है, 12 रसूलों के नाम से मुज़य्यन बुनियादें मौजूद हैं जो मुकाशफा 21:14 में है। 12 कबीलों से मंसूब 12 दरवाजे मुकाशफा 21-21 में जो मौजूद है। मंदिर बाला दरवाजों के मोती वही हैं जो 12 शागिर्दों की बुनियाद से मासूम है, और वही पत्थर हैं जो हारून के सीना बंद तैयार करने के लिए ज़मीन में बयान किए गए हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। इसकी तशरीह और तफसीलात मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबरों पर हमसे रब्ता कायम कीजिए, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। या आप तो आपको मुकम्मल तफसील या मालूमात से आगाह करना अपने फ़राइज़ में समझते हैं, और यकीनन हम अपने फ़र्ज से आगाह हैं, हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। पत्थर बतौर आला भी इस्तेमाल होते थे। यूं तो पुराने जमाने में पत्थर के बर्तनों का जिक्र भी मिलता है, मगर इसका जिक्र बाइबल में बहुत कम आया है। इसका जिक्र बाइबल में मटकों के हवाले से मिलता है, जैसे कि यूहन्ना 2:6 में कि यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक वहां पर 6 मटके धरे थे, पत्थरों के बने हुए 6 मटके धरे थे। या सलातीन 18:33 में। और फलाखन का पत्थर भी उसे कहा जाता था। फलाखन का पत्थर गोल होता था जिसे बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जाता था, बतौर आला भी इस्तेमाल करते थे। पत्थर से चक्की के पार्ट बनाए जाते थे। चक्की आपने इस तरह से चलती अगर देखी है कभी, वो 2 चिपटे पत्थर ले लिए जाते थे, उनको गोल कर लिया जाता था। जो नीचे वाला पत्थर होता उसमें एक दरमियान में सुराख करके एक लकड़ी उसमें ठोस दी जाती थी मजबूती से, और उसके ऊपर फिर दूसरा जो पत्थर होता उसके दरमियान में सुराख होता था, उसमें भी उसको ऊपर रख दिया जाता था, और साइड पर जो ऊपर वाला पत्थर होते उसमें सुराख करके वहां एक हत्थी बनाई जाती थी, और वहां से उसको पीसा जाता था, और दरमियान में जो है
वो जो भी आपको आटा वाटा पीसना होता था, गंदम, मकई, बाजरा, जो भी, तो वो उसको चलाते थे और वो साइडों से या एतराफ से वो निकलता चला जाता था और आप उसे इकट्ठा कर लेते थे अपने पकाने के लिए। तो इसका जिक्र भी हमारे पास मिलता है। इसके साथ एक घरेलू चक्की होती थी, उसका जिक्र बाइबल में आया है, और गधे या बैल के मदद से भी चलाया जाता था, जो कारोबारी नुक्ता निगाह से बनाई जाती थी। इस चक्की को अगर गांव में रहने वाले जानते हो, उनको खरास कहा जाता था, तो उसको नाम दिया जाता था। खरूज 11-5 में घरेलू चक्की गुलाम कैदियों से भी बड़ी चक्की चलवाने का काम लिया जाता था, ये याद रखा जाए। बड़ी चक्की चलाने के लिए गुलाम और कैदी भी जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, और जानवरों से भी काम लेना शामिल है। चक्की गिरव रखने की ममानत थी, चक्की गिरव रखने की ममानत थी, याद रखिए कि चक्की, आप कोई भी चीज गिरव रखें लेकिन अपनी चक्की को ना रखें, वो चक्की खुशहाली की अलामत है। चक्की की आवाज भी खुशहाली की अलामत है। यिर्मयाह 25:10 में लिखा गया है कि चक्की की आवाज खुशहाली की अलामत है। मुकाशफा 18:21 में खुशहाली के खात्मे को चक्की के पार्ट को समुद्र में गिरा कर तशबीह दी गई है। यानी उसका मतलब ये कि चक्की का पार्ट गिराने का मकसद यह है कि खुशहाली का दौर खत्म, अब खुशहाली जो है वो खत्म हो गई है, या उसको खुशहाली को उठा लिया गया है। सफेद पत्थर भी मुकाशफा की किताब में 2:17 में आता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उस पत्थर जिस पर एक नाम लिखा हुआ था, बहुत ही दिलचस्प तशरीह का मुतकाजी है। आप इस जीवन में आप हमसे राब्ता करें। और एक पत्थर और का भी जिक्र आता है जो कि दानियल किताब में है, कि जो खुदा की बादशाही की अलामत है। आप इन पत्थरों को समझना चाहते हैं, इनकी तशरीहात में जाना चाहते हैं, इनकी तौज़ीहात समझना चाहते हैं, और इनकी वजाहत आपके लिए जरूरी है, या मैं समझता हूं कि ये गैर जरूरी बात नहीं है। वजाहत और तशरीहात और तौज़ीहात हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें समझना चाहिए। और आप जब इनको समझना चाहते हैं तो फिर हमसे राब्ता जरूर कीजिएगा। आसमानी तख्त के मामले में भी मुकाशफा 4:1-3 में जो बयान आया है कि आसमानी तख्त को कीमती पत्थरों से मुज़य्यन दिखाया गया है, मगर यूहन्ना उसे समझने से कासिर है, क्योंकि वो कहता है कि वो तख्त संग यशब और अकीक का सा मालूम होता है। अकीक का सा मालूम होता है, इंग्लिश में उसके लिए सिमिलर, एज, लाइक वगैरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। यानी यूहन्ना उसकी असल सूरत, बनावट और तज़हीन आयश से तकरीबन नावाकिफ है। वो सब देख तो रहा है मगर उसके असल नूर और जलाल को जाहिर करने से कासिर है। तो अगर आप मजीद मालूमात आप चाहते हैं या आपको इसकी तशरीह दरकार है, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे राब्ता कायम कीजिएगा। ये क्या है, इनको समझना क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए या बाइबल के तालिब इल्म के लिए इसकी क्या अहमियत है, इसको जरूर समझिए और इस पर समझिए और सोचिए और अब निगाह दौड़ाइए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए। ये क्यों है, किस लिए है, सोचिए। मैं भी सोचता हूं। प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क स्टूडियो, कराची।